Hello students, myself Sapna Kashyap. So now today I am going to start second chapter of unit 3. Students, as you all are aware, if you are watching my previous videos, we have started with macroeconomics, determination of income and employment, which is unit 3 of class 12th. And in this unit, as I have told you, we have 3 chapters. The chapter number 1, which was the aggregate demand and its related concepts, we have already completed with the last video and with numericals also. And today I am going to start with the second chapter of the same unit, which is income determination and multiplier. So students, in this chapter we are going to study these subtopics, and these topics are, first we'll start with determination of equilibrium level, and there are two approaches to calculate the equilibrium level, which are aggregate demand and aggregate supply approach. Second is saving and investment approach. Third topic, we are going to do concepts of investment multiplier, which is very important, and obviously numerical based on ADAS, SI approach, or specially based on the topic investment multiplier. So these topics we are going to cover within 2 or 3 videos. So let's get started with the today's topic, which is determination of equilibrium level and ADAS approach. So let's start with our first concept, which is determination of equilibrium level. इक्विलिब्रियम टर्म हम पहले लास्ट ईयर क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ये सब पढ़ा है. लेकिन बिकॉज मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ एन इकोनॉमिक्स विच वी आर स्टडिंग द कंसेप्ट एज अ होल, जहां हम पूरी इकॉनमी को एज अ होल पढ़ते हैं. तो यहाँ पर ये जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकॉनमी है. अब ये क्या कहता है, ये जो थियोरी है गिवन बाय केन्स, ही वॉज एन इकोनॉमिक्स. सो केन्सियन थियोरी कहती है एक इकॉनमी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज is equal to aggregate supply of goods and services. So according to equilibrium level of economy, it is a situation where aggregate demand is equal to aggregate supply. अब aggregate demand का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो होता है C+I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और aggregate supply होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग. तो अगर मैं इस कंजम्पशन को लेफ्ट हैंड साइड पे और इन्वेस्टमेंट को राइट हैंड साइड पे ले आती हूँ, तो ये C और C कट हो जाएगा, तो मेरे पास बचा S इज इक्वल टू I. इसका मतलब कि अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है तो सेविंग भी इन्वेस्टमेंट के इक्वल होंगी. स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट में द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हम 2 अप्रोचेस पढ़ेंगे. पहली हम पढ़ेंगे ADAS अप्रोच, जो ये है, और दूसरी हम पढ़ेंगे S&I अप्रोच. So let's start with first approach, which is ADAS approach, or aggregate demand and aggregate supply approach. If this question comes in exams or especially in board exams, first of all you have to write the definition of what is an equilibrium. So we will again write, which I have just told you, that an economy is an equilibrium when aggregate demand of goods and services is equal to aggregate supply of goods and services produced in an economy. So after writing the definition, you will write about AD, 1 or 2 lines about AD. You know the definition of aggregate demand, which I have already taught you, or you can simply write the components of AD. AD is equal to C plus I and aggregate supply is equal to C plus S. ये इसके components हैं और ये इसके components हैं. हम इनके बारे में एक एक 2-2 लाइनें लिखेंगे और फिर हम डायरेक्टली स्केड्यूल पर आ जाएंगे. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन या तो एग्ज़ाम में एग्जामिनर आस्क्ड यू हैव टू एक्सप्लेन ADAS अप्रोच विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. दोनों एक साथ नहीं आते हैं, बिकॉज अगर दोनों आएंगे तो इट विल बी वेरी लेंदी, वो 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग कवर नहीं होगा. तो लेकिन हम, बिकॉज हमें नहीं पता कि डिमांड आएगा, डायग्राम आएगा या फिर स्केड्यूल आएगा, तो हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे. पहले हम इसका स्केड्यूल देखते हैं. ये टेबल वो है जो हम पीछे से पिछले 3-4 वीडियोस से बनाते आ रहे हैं. इसमें देखो इनकम लेवल हमें गिवन है, दिस इज 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600.
कंजम्पशन आई एम टेकिंग फ्रॉम 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520. सेविंग इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करके निकाली है, तो -40, -20, 0, 20, 40, 60, 80. इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस, सो विच विल बी कॉमन 40, 40, 40, 40. अब यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड निकालने का फॉर्मूला होता है C+I. मतलब मैंने ये कंजम्पशन और इस इन्वेस्टमेंट को ऐड किया तो 40 + 40 ये हो गया 80, 120 + 40 60, 200 + 40 240, 280 + 40 320 और ऐसे ये 560. एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला है C+S. इन दोनों कॉलम्स को ऐड किया. एंड इफ़ यू रिमेंबर, जब मैंने आपको एग्रीगेट सप्लाई कंसेप्ट अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में पढ़ाया था इस यूनिट के, तो आपको बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई इज़ ऑलवेज इक्वल टू इनकम. तो ये सेम इनकम लेवल ही आएगा. अब हमें देखना है कि इकॉनमी इक्विलिब्रियम में कहाँ है. इकॉनमी इक्विलिब्रियम में वहाँ होती है जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती हैं. इट मीन्स ये जो लेवल है हमारा, दिस इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट बिकॉज हियर AD इज इक्वल टू AS. यहाँ AD भी 400 है, AS भी 400 है और इनकम लेवल भी 400 है. सो एट 400 इनकम लेवल एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. दिस इज माय इक्विलिब्रियम और यू कैन से इकॉनमी इज इन इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट. इससे पहले अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है. सो हियर द सिचुएशन इज ऑफ AD इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई. और इक्विलिब्रियम के बाद अब हमारी एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है. सो दिस विल बी अ सिचुएशन ऑफ AS इज ग्रेटर देन AD. सो आफ्टर ड्राइंग दिस schedule we are going to write these comments at one of the box. ये दोनों सिचुएशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हेन AD इज़ ग्रेटर देन AS और AS इज़ ग्रेटर देन AD. ये मैं आपको आज ही करवाऊंगी, लेकिन इसका डायग्राम बनाने के बाद, बिकॉज ये सिचुएशन हम डायग्राम और स्केड्यूल दोनों की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं और दोनों में ही सेम एक्सप्लेनेशन है. सो यू जस्ट नोटेड डाउन दिस टेबल एंड आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम to explain the situation of equilibrium in an economy. Students, let's start with the diagram. On OX axis I have taken income, employment and output. On OY axis I have taken AD and AS. So first of all I am drawing AS, aggregate supply, which is always equal to income and it always starts from point of origin, which is O. AD, as we have taught you in the previous videos, AD never starts from zero. कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा. रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज AD इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ C+I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एंड बिकॉज कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो, सो AD विल ऑल्सो नॉट बी जीरो. सो दिस इज अ पॉइंट वेयर AD इज इक्वल टू AS. इस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है. मैंने इसे पॉइंट E बोला और ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, दैट वी ऑल नो. तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा? पॉइंट E विल बी इक्विलिब्रियम बिकॉज यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है. इसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखो तो एग्रीगेट डिमांड कर्व ये है और एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये है. So this will be a situation that aggregate demand is greater than aggregate supply. मतलब कि यहाँ पर गुड्स की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है. इक्विलिब्रियम पॉइंट आने के बाद नाउ माय एग्रीगेट सप्लाई कर्व टर्न्स अपवर्ड. तो ये सिचुएशन में एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड. तो यहाँ पर ये एग्रीगेट सप्लाई इतनी ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से. Students, now I'm going to explain you, or I'm going to complete this particular topic, which is aggregate demand and aggregate supply approach. So last concept of this is the two special situations when I'm teaching you the equilibrium level. जैसे मैंने आपको अभी बताया, इक्विलिब्रियम लेवल वो होता है जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है. लेकिन उसके अलावा दो और सिचुएशंस होती हैं. पहली सिचुएशन जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, जो ये वाली सिचुएशन है जो इक्विलिब्रियम से पहले है. तो
तो पहले तो इस सिचुएशन का मीनिंग क्या है आप ये समझो। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है ऑल द सेक्टर्स इन द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय मोर एज the all the producers in the economy are planning to produce less number of goods and services। मतलब कि खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज है मार्केट में उसकी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। जब कभी भी किसी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उसके कारण जो प्लान इन्वेंट्रीज हैं वो फॉल करेंगी, राइट। अब हम क्या करेंगे इस केस में, इसको इक्विलिब्रियम लेवल पे लाने के लिए, बिकॉज वी आर हियर वी आर नॉट एट एन इक्विलिब्रियम, टू मूव इट टू द इक्विलिब्रियम लेवल विच इज़ एट क्यू लेवल, इनकम, इसमें आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और लोगों को जॉब्स दी जाएंगी ताकि प्रोडक्शन, जैसे कि हम इस मार्कर का एग्जांपल लेते हैं, मार्केट में 100 लोग हैं जो मार्कर खरीदना चाहते हैं लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सिर्फ 60 मार्कर्स बना रहे हैं। तो जब यहाँ पर डिमांड 100 है और सप्लाई सिर्फ 60 है, उस केस में क्या होगा, जब डिमांड बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा लोगों को जॉब्स देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे और उसके कारण आउटपुट बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगी। तो हम इस पॉइंट से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएंगे एंड इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस इज वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। ये हमारा इक्विलिब्रियम के बाद वाली सिचुएशन है जब सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। ऑब्वियसली अगर मैं सेम आपको मार्कर का एग्जांपल ही दे रही थी तो मतलब अब हम इसको ऐसे लेते हैं कि मार्कर की मार्केट में सप्लाई तो 150 है, प्रोड्यूसर्स आर प्रोड्यूसिंग 150 मार्कर्स, बट ओनली 100 पीपल एंड फर्म्स और इंडस्ट्रीज आर देयर हु आर विलिंग टू बाय द मार्कर। तो सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है जिसके कारण जो प्लान इन्वेंट्री है दैट वुड राइज, राइट। और हम अगर यहाँ हैं, अगर हमारे पास सप्लाई ज़्यादा है, बहुत सारा स्टॉक हमारा अनसोल्ड है जो नहीं बिका, यहाँ पर हम 50 मार्कर्स की बात कर रहे हैं, वो हमारे पास बचे रहे, सिर्फ 100 मार्कर बिके, तो जो प्रोड्यूसर्स नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे प्रोडक्शन तो वो 50 मार्कर्स कम प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज उनके पास पहले का स्टॉक ऑलरेडी है, तो वो उसको यूज़ करेंगे, राइट। तो उस स्टॉक को यूज़ करेंगे तो उसके कारण क्या होगा, वो एम्प्लॉयमेंट कम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कम करने के कारण ऑब्वियसली आउटपुट भी कम होगा और इनकम भी कम होगी एंड वी विल कम बैक टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम विच इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई।